درود بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کی کہ جس نے جن و انس کو خلق کیا صرف عبادت کے لیے، اور لاکھوں درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ کہ جن پہ اللہ رب العزت اور ان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو، عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو، جس کا ہو رسالت پہ بھی احسان دکھا دو۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے تو سجا رکھے ہیں قصر ابو طالب، ہم نے تو سجا رکھے ہیں قصر ابو طالب، تم بھی کوئی قصر ابو سفیان دکھا دو۔ عمران کے ایمان پہ شک میں تھی یہ سازش، عمران کے ایمان پہ شک میں تھی یہ سازش، آسی کو بھی معصوم سا پیکر ہی بنا دو۔ ماشاءاللہ۔ آسی کو بھی معصوم سا پیکر ہی بنا دو، آغوش گناہگار سے معصوم کو لے لو، آغوش گناہگار سے معصوم کو لے لو، معصوم کی مسند پہ گناہگار بٹھا دو۔ جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس کے گرد پاک چومے فاطمہ بنت اسد، جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد، جس کی گرد پاک چومے فاطمہ بنت اسد، جو علی سے مہدی دین تک امامت کی حجت، جو علی سے مہدی دین تک امامت کی حجت، کس کو اندازہ ہے اس کی عظمت ایمان کا، بانی اسلام خود ممنون ہے عمران کا۔ ماشاءاللہ۔ اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ، اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ، پوچھ تاریخ عرب کے سب ستمگاروں سے پوچھ، کربلا میں ٹوٹتی بے لوث تلواروں سے پوچھ، شام کی گلیوں سے بازاروں سے چوراہوں سے پوچھ، ذریت کس کی یزیدی حوصلے پہ چھا گئی، کس کی پوتی ظلم و استبداد سے ٹکرا گئی۔ ماشاءاللہ۔ پھر بھی درود بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت و جاہلیہ، ماتا میتت و کافریہ۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہل مرا، وہ کافر۔ عزاداران حسین، عزاداری امام حسین ہماری شارق حیات ہے۔ عزاداری امام حسین ہماری شارق حیات ہے، عزاداری امام حسین ہمارا مقصد حیات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معرفت امام بہت ضروری ہے۔ اے عزادار حسین، اپنے مقام کو پہچان، اپنی عظمت کو پہچان، اپنے مقصد کو پہچان۔ تو اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا رہا ہے اور گلی کوچہ میں صدا کا دے رہا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ پیغام تجھ تک پہنچا علی اکبر کے لہو سے، بی بی زینب کی چادر سے۔ تو پیغمبر ہے مشن حسینی کا، تو علمدار ہے حل من ناصر ینصر نہ۔ تیری صدا سلام یا حسین، لبیک یا حسین، ان صداؤں سے طاغوت اور یزیدیت گھبرا اٹھی ہے۔ اے عزادار حسین، تیری عظمت کو سلام۔ جو ہاتھ غم حسین میں اٹھتی ہیں، یہ ہاتھ ان کے سینوں پہ نہیں،
बल्कि यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। अज़ादारे हुसैन का अज़्म ये सनसनाती हुई गोलियां नहीं रो सकती, क्योंकि उस अज़्म में सरकारे वफा की वफा शामिल है। ऐ सोगवारे हुसैन, ऐ अज़ादारे हुसैन, ऐ शरीके जलूसे अदा, तेरी अज़मत को सलाम पेश करता हूं। लेकिन इसके साथ ये मिंबर और ये वक्त तो इससे चंद तकाज़े कर रहा है। और है मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ अज़ादारे हुसैन, जब तेरा मिशन इतना अजीम कि तेरे अज़म का रास्ता गोलियां भी नहीं रोक सकती, और ऐ अज़ादारे हुसैन, तेरी सदा दुनिया के गोशा गोशा में गूंज रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये बहते हुए आंसू और ये नजराने खून, ये जब तेरा चेहरा दुनिया देखती है कि सर में खाक डाले हुए, तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ऐ अज़ादारे हुसैन, अगर तू ये चाहता है कि दुनिया की हर कसर पे सरकारे वफा का आलम हो, और अगर तू चाहता है कि हर जुबान पे लब्बैक या हुसैन की सदा हो, तो फिर अपने किरदार साजी करना होगी। अगर तू चाहता है ये सब मुयस्सर हो, तो इमाम महदी का सिपाही बनना पड़ेगा। और सिपाही का किरदार क्या है? सिपाही का किरदार ये है कि जो इमाम चाहते हैं वही वो किरदार अदा करे। तो उसके बारे में मुकम्मल हदीस में सरकार ये रिवायत है शेख मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी से, और उन्होंने अब्दुल रहमान से रिवायत की, और उन्होंने सरकार सादक आले मोहम्मद से रिवायत की कि हमारी मारिफत के बगैर मुसलमान साले और नेक नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। कोई मुसलमान, कोई अज़ादारे हुसैन, कोई मोमन, कोई कलमा पढ़ने वाला, अगर वो ये कहे कि वो मोमन है और नेक व सालेह है, तो उस वक्त तक नेक व सालेह नहीं हो सकता जब तक मारिफते मोहम्मद वाले मोहम्मद मुयस्सर ना हो। फिर आप फरमाते हैं कि मारिफते इमाम उस वक्त तक मुयस्सर नहीं होती जब तक हमारी तस्दीक ना की जाए। फिर सरकार से सवाल किया गया कि सरकार आपकी तस्दीक कैसे है? तो फिर आपने फरमाया कि हमारी तस्दीक का दारोमदार 4 चीजों पर है, जो एक दूसरे के साथ मुनसलिक व मरबूत है, जो जुड़ी हुई है। जिसमें पहला ईमान, जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, जिसे असूल दीन कहते हैं। उसके बाद सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाती हैं तौबा, तौबा मोमन की ढाल है, तौबा मोमन का हथियार है। और उसके बाद फिर आप फरमाती हैं कि अमल साले, और उसके बाद मवद्दत आले बैत। अगर किसी इंसान में ये किसी मोमन में 4 चीजें हो, ईमान कामिल हो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हो, अमल साले बजा लाता हो, और उसके सीने में मवद्दत आले बैत मौजज़न हो, फिर उसके दिल में मारिफत इमाम आ सकती है। माशाअल्लाह। दूध भेजे मोहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जितनी मारिफत बुलंद होगी इतनी ही अतात बुलंद होगी, और जितनी अतात बुलंद होगी इतना अच्छा अमल होगा, और वो इंसान मुत्तकी और तक़वे की मंजिल पे फाइज होगा। और कुरान भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि वो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और आप हर अज़ान में कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीना व इमामल मुत्तकीना। कुरान भी मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और अली भी मुत्तकियों का इमाम है। ऐ अज़ादारे हुसैन, जब तेरी ये अज़मत कि तू दुनिया के गोशे गोशे तक हल मिन नासर यनसरना की सदा पहुंचा रहा है, आज तेरा ये अज़्म कि सनसनाती हुई गोलियां तेरा रास्ता नहीं रोक सकती। और इमाम महदी आपसे ये तवक्को रखते हैं
अपना किरदार ऐसा किरदार बनाएं जैसा मेरे सिपाही का किरदार होना चाहिए। तो फिर आज इस दौर में अगर पूरी जिंदगी बीत जाए, किरदार नहीं बनेगा। किरदार उस वक्त बनेगा जब आप अपनी किरदार साजी करेंगे। किरदार साजी करने से किरदार बनता है। और हुसैन के मानने वाला, अली के मानने वाला, मदीनतुल इल्म के मानने वाला कभी जाहिल नहीं हो सकता। इल्म हिकमत मोमन की मीरास है, जहां से पाए उसे हासिल कर ले। और अली का शिया ही वही है जो इल्म रखता हो और इल्म की दावत देता हो। अगर उससे कोई बात करे तो कुरान करीम की आयत की बरसात के साथ और हदीस की आंच दे देकर उसे ऐसा मुदल्लल जवाब दे कि दूसरा दोबारा वो ये जसारत ही ना कर सके कि आपसे कोई सवाल करे। आपके एक हाथ में अल्लाह की किताब है और आपके दूसरे हाथ में दामन आले बैत है, जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे आले बैत है जो कभी आपस में जुदा ना होंगे। इसलिए हमारा वतीरा ये होना चाहिए कि एक हाथ में दामन आले बैत हो और दूसरे हाथ में कुरान हो, फिर आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। और फिर जब आप सदा देंगे तो हर इंसान लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी अपनी ज़ुबानों को मुअत्तल फरमाएं दुरूद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन मिन्नी वाला मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन रोशनी का चराग और निजात की कश्ती का नाम हुसैन। माशाअल्लाह। अज़ादाराने हुसैन कई यजीद उठे और मिट गए। गौर करें आज के इस अज़ादार की क्या अजमत है कि एक वक्त था 26 से ज्यादा ममालिक का हुक्मरान और सिर्फ 2 आदमी थे जिन्होंने अल-ऐलान यजीद की बैत ना की थी। और आज इस दौर में कोई है जो यजीद की वकालत करे? नहीं, सामने आने की किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि गली कूचों में लानत के साथ यजीद का इस्तकबाल किया जाता है। और हुसैनियत ने यजीद को गाली बना के रख दिया है। अज़ादार हुसैन, आपकी उस अज़ादार हुसैन की बहुत अजमत है, बहुत मकाम है। इसलिए हम अपनी किरदार साजी करें, क्योंकि आज के दौर का यजीद मुख्तलिफ हीले बहानों से हुसैनियत को दबाना चाहता है। हमने ये भी देखना है, जो हमारे अंदर है उन्हें भी हमने देखना है, क्योंकि कभी जहालत का हुसैनियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और हमने अंदर के दुश्मनों को भी देखना है जो सौदागर खून हुसैन है, और बरूनी साजिशों को भी देखना है, क्योंकि हुसैन एक इनकलाब का नाम है। हमेशा करबला के बाद हुसैनी से 2 ताकतों को खतरा रहा। एक ताकत का नाम तागूत है, एक ताकत का नाम साम्राज्यत और तागूत है, और दूसरी ताकत का नाम यजीदियत है। यजीदियत से भी आप बरसरे पैकार हैं और तागूत से भी आप बरसरे पैकार हैं। तागूत जबरो इस्तबदाद का नाम है और हुसैन आजादी और वकारे इंसानी का नाम है। इसलिए आपको 2 ताकतों के साथ आपका वास्ता है। एक तागूत है और दूसरे यजीदी हैं। अपने किरदार साजी करें और अपने आप को आरास्ता करें, तैयारी करें। पहले तदा भाई जिस तरह बयां कर रहे थे कि इमाम ज़मा के ज़हूर की दुआ करें और हम तैयारी करें उनके सिपाही बनने की और अपनी किरदार साजी करें। ये वक्त की अहम जरूरत है। अगर आज ये मिंबर आपसे कुछ तकाजा कर रहा है, क्योंकि आज ये सदा सिर्फ एक जगह महदूद नहीं बल्कि दुनिया के गोशा गोशा में फैल रही है। और अगर बयान करने वाला कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल अंदाज में बयान करेगा
तो ना जाने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर उसका असर होगा। हमें इस वक्त की इंतजार थी, इसके लिए आपने अपनी दौलत खर्च करके गली कूचों में आके लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद की। आज ये सदा पूरी दुनिया में देखी जा रही है। और हुसैन वो जात है जिसे मोजज़ा कहते हैं, जिसकी फितरत पे हुक्मरानी है। अगर यकीन ना आए तो चेला में इमाम हुसैन पे मवाजना कर लेना कि करबला के मैदान में कितना इंसानों का जम्मे गफीर आके इमाम आली मकाम को खिराज तहसीन और नजराना अकीदत पेश करता है, और पूरी दुनिया ऐसा इत्तबा पेश करने से कासिर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यजीद ने इमाम आली मकाम से मुतालबा किया बैअत का। इमाम आली मकाम शहीद हो गए और यजीद अपनी ताकत के ज़ोन में जब तख्त पे बैठा हुआ था और शराब पी रहा था और ये कह रहा था कि आज मेरे वो बुजुर्ग होते, मेरा भाई फंजला होता, उत्बा अतैबा होते, आज अबू जेल होता, आज वो देखते कि मैंने किस तरह बदर के बदले लिए हैं। ये यजीद के ईमान की अक्कासी करता। यजीद कहता था कि रसूल खुदा पे कोई गई नहीं होती। यजीद कहता था ये हुकूमत के लिए बनी हाशिम का ढोंग है। और आज के इस दौर में ये आज़ादारान हुसैन की अजमत है कि जिन्होंने यजीद का वो चेहरा बेनकाब कर दिया, और हर इंसान खा वो मुसलमान है या हिंदू है या किसी भी मजहब से तल्लुक़ रखता है, वो यजीद पे लानत करता है और हुसैन की अजमत का इकरार करता है। माशाअल्लाह। ये इनकलाब क्यों आया? 26 ममालिक का हुक्मरान, लेकिन आज लानत उसका मुकद्दर बन चुकी है। इसलिए ये इनकलाब आया कि गली कूचों से सदाए हुसैन बुलंद होने लगी। लेकिन बरादरान ईमानी व इस्लामी, जिस तरह पहले इर्तज़ा भाई कह रहे थे कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यजीदियत से ज्यादा हुसैनियत से तागूत को है। वो अपने इक़्तिदार बचाने के लिए गैर महसूस तरीके के साथ आपके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाह रहा है, ताकि आप एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हो। याद रखें, आप उस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं कि जिस पे आप जितना फख्र करें उतना ही कम है, और उस मिशन का एक तसलसल शिफात मोहम्मद मुस्तफ़ा है। माशाअल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। आज शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, आपका नाम फातिमा है और सकीना के मानी है सुकून देने वाली। जब इमाम हुसैन आपको अपने सीने पे लिटाते तो फरमाते कि अंता सकीना, तो सकीना है, तो इससे मेरे दिल को सुकून और राहत मिलती है। इतनी मोहब्बत थी मेरे मौला हुसैन को अपने बाबा से और अपनी माँ फातिमा ज़हरा से कि अपनी हर बेटी का नाम फातिमा रखा और अपने हर बेटे का नाम अली रखा। अज़ादारान हुसैन ये वो मासूमा है जो अपने बाप की शहादत की शाहिदा है, जिसने बिल्कुल कम से उम्र में बहुत ज़्यादा मसाइब उठाए। जब कभी पानी मुयस्सर होता तो देखती कि भैया सज्जाद के गले में जो आहनी तोक है धूप से तप चुका है, खुद पानी न पीती, आके उस पर डाल देती। अज़ादारान हुसैन जब ये सादात का लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा, शाम को दुल्हन की तरह आरास्ता किया गया, तरह तरह के रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं, उसके नीचे ढोल पीटे जा रहे हैं, तबल बज रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बागी आगे बागी आगे। अज़ादारान हुसैन जब देखा ना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाम का ये मंजर, बीबी कहती है सज्जाद
इन लोगों से कहो कि ये जो सर है नरदेदों पे इन्हें आगे ले जाए। तो उस वक्त एक मनूर कहता है बीबी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, ये शाम है और आप कैदियों के यहाँ आए हैं। आगे सानिए ज़हरा दरबार में मैं इतना कहूँ कि अली का जोश हिम्मत हौसला लेकर अब्बास की वफा लेकर वो मिशन जो मिशन हुसैनी था वो बीबी ने पूरा करना था, सर अंजाम देना था। आज के इस दौर में कोई मिसाल पेश करने से कासर है, न जाने किस दिल की मालिक थी, कितनी हिम्मत और हौसला वाली थी। जब आई दरबार यजीद में क्या देखा, जो कभी दोषे रसूल का सवार था वो तश्त में पड़ा है और यजीद शराब पी रहा है और साथ जो कातिल है वो मुबारकें दे रही है और ये इनाम दे रहा है। कभी अली अकबर का कातिल कहता है इनाम थोड़ा है, इतने में हुरमला आता है, वो कहता है यजीद मेरी झोली इनाम से भर दे, मैंने वो काम किया जो तेरा पूरा लश्कर सारा अंजाम नहीं दे सकता था। ये कहता है ए हुरमला तूने क्या किया? वो कहता है मैंने उस सिपाही को शहीद किया जो बगैर हथियारों के आया था, मगर तेरी फौज उसकी मजलूमियत पे रोने लगी। आज़ादाराने हुसैन। फिर यजीद देखता है कि एक बच्ची है जो अपना कभी दाया पाँव उठाती है, फिर कभी बाया पाँव उठाती है, उसके गले में रस्सी है। वो सवाल करता है ये कौन है? लोग कहते हैं ये हुसैन की बेटी सकीना बिन्त हुसैन है। ये कहता है इसे आज़ाद करो। जब बीबी के गले से रस्सी को हटाया गया, ये कहता है ए सकीना बिन्त हुसैन तेरा बाबा तुझे क्या देता था? बीबी कहती है मेरा बाबा मुझे खजूरें देता था। ये कहता है ये तश्त में खजूरी है। बीबी ने मुड़ के देखा, बीबी ज़ैनब फरमाती है सकीना मजलूमियत में हमारा इम्तिहान है, आगे बढ़ो। जब बीबी आगे बढ़ती है उस तश्त से रुमाल को हटाती है, नीचे बाबा का सर है। बीबी उस वक्त दुख भरे बयान करती है। बीबी कहती है बाबा मैंने तुझे बेगौरो कफन देखा था, क्या किसी ने तेरी लाश को दफनाया भी है या नहीं? फिर बीबी कहती है बाबा मेरे कानों से नहीं इन्होंने ऐसे गोशवारे छीने, मेरे कान जख्मी हो गए। आज़ादाराने हुसैन। ये दरबार में यजीद जसारत करता है, कहाँ है ज़हरा की बेटी? उस वक्त मेरी बीबी फरमाती है और यमुना दर का उसकुत तेरी जुरत किस तरह हुई, तूने मेरी माँ का नाम लिया। बीबी ने खुतबा दिया, ओ लोगो मेरा भाई निमाजी था, जो जानते हैं वो जान लो। जब बीबी ने खुतबा दिया, ये जो अपनी ताकत के ज़ौम में नशे में चूर था, जो हुसैन ने बैयत का मुतालबा कर रहा था, इतना घबरा गया, इतना घबरा गया। ये कहता है अज़ान दो, अज़ान दो, अज़ान दो। 9 मुअज्जिन उठे, उन्होंने अज़ानें दी। जब पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बीबी ने कहा रुक जाओ। उनकी आवाज उनके गलों में रुक गई। बीबी कहती है शाम वालों ये मोहम्मद मेरा लाना था, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, ये मोहम्मद का बेटा हुसैन है। उस वक्त सफीर रूम उठा, दरबार में हलचल मच गई। इसने कैदियों को भेज दिया जिंदान में। आज़ादाराने हुसैन। जब ये जिंदान में कैदी आए, यजीद ये चाहता था कि जो बच गए हैं ये जिंदान की नजर हो जाए, लेकिन सानिए ज़हरा के खुतबे, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों ने इंसानी ज़मीरों को झंझोड़ा और वो रोते हुए घर गए। शाम में हलचल मच गई। हम जिसे बागी कहते थे, ये बागी नहीं, ये मोहम्मद का बेटा है, ये ज़हरा का हुसैन है। और ये मस्तूरे जो जिंदान में कैद हैं, ये मोहम्मद की नवाज
قرآن پڑھا جائے، کوئی بات نہ کرے۔ ادھر دو روایات ہیں بی بی سکینہ سلام اللہ کے بارے میں۔ ایک یہ روایت کہ آپ کے سامنے بابا کا سر پیش کیا گیا، ایک یہ روایت کہ بی بی نے دیکھا کہ خواب میں بابا تشریف لائے ہیں۔ بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جب بی بی سکینہ کہتی ہے بابا واہ غربتا، جب بی بی کہتی ہے واہ حسینہ، بی بی نے بیان کیے اپنے بابا کے ساتھ۔ بی بی کہتی ہے بابا میں تیرے سینے کا تعویذ ہوں۔ بابا شام کی بچیاں تکیے پہ سر رکھ کے سوتی ہے، سکینہ پتھروں پہ سر رکھ کے سوتی ہے۔ بابا میرے کانوں سے ابھی تک خون بہتا ہے، بابا مجھے شمر نے تماچے مارے۔ پھر بی بی کہتی ہے بابا میرے پاؤں کی تلیاں زخمی ہے۔ پھر بی بی سوال کرتی ہے بابا ہم مدینے کب جائیں گے؟ عزاداران حسین۔ اس کے بعد بی بی کا انتقال ہو گیا۔ دعا کرو پردیس میں، عالم مسافرت میں کسی کا قضیہ نہ ہو۔ سجاد نے دیکھا باقر کی طرف، باقر نے دیکھا اپنے بابا کی طرف۔ بی بی زینب کہتی ہے واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ۔ میرے مولا آئے آگے کہتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ غریب والا قبرستان کہاں ہے؟ اور غربت کی انتہا ایک عابد، ایک باقر اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگائے ہوئے معصومہ کو قبرستان میں آئے۔ افسوس واہ غربتہ، واہ حسینہ۔ ارتے کردہ معصوم سکینہ چھوٹے سن وچ تے عباس دی جرات وکھا گئی۔ او آدھی ہائی میں مر ویسا میں کو پیو دی غربت کھا۔ معصوم سکینہ چھوٹے سن وچ تے عباس دی جرات وکھا گئی۔ او آدھی ہائی میں مر ویسا میں کو پیو دی غربت کھا۔ آجت کفان یزید دا نام آیا تے معصوم دی میات کما گئی اردی تھی آئی۔ کفن دی جاتے وہ میلا چولا پا آوٹا کتنا پڑھ کے خوش تھی رہے تے کو مفت اسلام ڈہی گئے۔ کیا خبر تے کو این دین ہوتے ہو کیا خرچ حسین ڈالی۔ آوسدہ گلشن زہرا دا تے ڈوپارا وچ سج تھی گئے باغ دے وچ ایک گلہائی جڑا تیر دا پانی پی۔